Hello students, Master Cadre Subject English. Today's topic is William Wordsworth from Romantic Age. This is the third part of William Wordsworth work. If you want to watch first two part of William Wordsworth, then press on the I button that show on your screen. Let's start William Wordsworth short poems. Ode on intimations of immortality or immortality ode। हाँ जी, कोई भी एक नाम आ सकता है इसਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੋਇਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ अर्ਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪੋਇਮ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਵੌਨਸ ਦੇ ਵਰਕ ਦਾ ਰੀਟਰੀਟ ਤੋਂ। हाँ जी, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਬਾਰੇ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਵਨਸ ਲਾਈਫ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਬੈਸਟ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਆਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਬਟ ਅ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਫॉरगेटिंग। हाँ जी, ਇਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਪੋਇਮ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਪੋਇਮ ਦੀ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर्स दैट blooms कैन गिव मी थॉट्स टू डीप फॉर टीयर्स। हाँ जी, नैक्सट पोइम करते हैं। द सॉलिटरी रीपर्स डील्स विद मैसेज दैट म्यूजिक नोज नो लैंग्वेज। इस पोइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੋ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋਈ ਹੈ 1807 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਬੈਲਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੋਲੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, नैक्सट पोइम माई हार्ट लीप्स अप आल्सो नोन एज द रेनबो। हाँ जी, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ कि रेनबो ਆ जो पोइम है इसका अनदर नेम किया माई हार्ट लीप्स अप या हार्ट लीप्स अप द अनदर नेम किया द रेनबो। हाँ जी, इस 9 लाइन्स ने। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है आ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन माई हार्ट लीप्स अप वैन आई behold ਆ ਰੇਨਬੋ ਇਨ ਦਾ ਸਕਾਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ। प्रीवियस पेपर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ कि किस पोइम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਲਿਪਸ ਅਪ ਦ ਰੇਨਬੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ पोइम ਮਾਈਕਲ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟ੍ਰੈਜਿਕ पोइम ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਡੈਥ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਕਰੈਕਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਸ ਸਨ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਸਿਟੀ। ਉਸਦਾ ਜੋ ਸਨ ਹੈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਟੂ ਅਰਨ ਮਨੀ ਬਟ ਸਪੋਇਲ ਦੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਪੋਇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੈਸਟੋਰਲ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾफ़ी ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਕਿਹੜੀ ਪੋਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਸਟੋਰਲ ਪੋਇਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਨੈਵਰ ਲਿਫਟਡ ਅ ਸਿੰਗਲ ਸਟੋਮ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਨੇਮ ਜਾਂ ਕਾਟੇਜ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਈਵਨਿੰਗ ਸਟਾਰ। लंडन 1802 द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ लंडन 1802। हाँ जी, लंडन 1802 है जो पोइम यही पब्लिश्ड हुई है 1802 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾफ़ੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿਸ पोइम डील्स विद जॉन मिल्टन। हाँ जी, ये पोइम है जो जॉन मिल्टन ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ। वर्ड्सवर्थ आस्क्ड वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन ਨੂੰ ਕਿਹਾ कम अलाइव वापस जिंदा हो जाओ, वापस आ जाओ बिकॉज एट दैट टाइम उस टाइम इंग्लैंड डिमांडड आ नैशनल पोइट। जो इंग्लैंड है जो इंग्लैंड ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋ ਪੋਇਮ ਹੈ ਇਹ ਐਲੀਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਮਿਲਟਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇਗੀਆਂ ਮਿਲਟਨ ਦੋ ਸ਼ੁਡੈਸਟ ਬੀ ਲਿਵਿੰਗ ਐਟ ਦਿਸ ਆਰ ਦੋ हैज़ a voice whose sound was like a sea thy soul was like a star and devils apart। हाँ जी, ये लाइन्स ने जो सारियां ये वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, नैक्सट पोइम द टेबल टर्न सब टाइटल है इसका अनदर नेम है एन ईवनिंग सीन ऑन द सेम सब्जैक्ट। सब टाइटल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोटल लाइन्स ने इस 32 ने इस जो इस स्पीकर है विलियम वर्ड्सवर्थ है। हाँ जी, इन दिस पोइम बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने सुजैसट किया अपने फ्रेंड ਨੂੰ टू स्टॉप रीडिंग बुक्स एंड इंजॉय नेचर कि अपने बुक्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਅਮ ਵਰਡਸਵਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਟੇਬਲ ਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ let nature be a your teacher
वन इंपल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड। हाँ जी नैक्सट पोइम एन ईवनिंग वॉक, ये हेरोइक कपलेट दे विच है। रेवोल्यूशनरी पोइम है जी, हाँ जी ये रेवोल्यूशनरी पोइम है। डील्स विद एंटी एरिस्टोक्रेसी फीलिंग्स, इसदे विच मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये पोइम इंस्पायर्ड हुई हैगी द फ्रेंच रेवोल्यूशन। पेपर दे विच क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की किहड़ी पोइम है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन तो इंस्पायर हुई है, एन ईवनिंग वॉक। हाँ जी नैक्सट डिस्क्रिप्टिव स्कैचेस, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम वर्ड्स की फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री है डिस्क्रिप्टिव स्कैचेस। ये हेरोइक कपलेट दे विच है, डील कर रही हैगी विलियम वर्ड्सवर्थ की जर्नी नू टू स्विट्जरलैंड। डिस्क्राइब्स वॉकिंग टावर इन द एल्प्स, एल्प्स ਦੇ ਵਿੱਚ वॉकिंग टावर बारे दस्या गया है। हाँ जी नैक्सट पोइम कर रहे हैं वी आर 7, इट इज़ अ टॉक बिटवीन अ गर्ल एंड विलियम वर्ड्सवर्थ। ये पोइम एक गर्ल एंड विलियम वर्ड्सवर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ टॉक्स दी आ। ये पोइम है जो लिरिकल बैलड्स ਦੇ ਵਿੱਚ है और पब्लिश्ड हुई है 1798 ਦੇ ਵਿੱਚ। नैक्सट पोइम टू द कुकू, हाँ जी इस वर्क आइडेंटिफिकेशन के पोइम ज़्यादा आ सकती है कि टू द कुकू पोइम किस दी आ। हाँ जी विलियम वर्ड्सवर्थ की ये पोइम डील कर रही है जॉय एंड हैप्पी मैमरीज नाल। इस टोटल 8 स्टैंजाज ने। हाँ जी नैक्सट पोइम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, प्रेजिज टू पोइट। हाँ जी इस पोइम के विलियम वर्ड्सवर्थ ने 2 पोइट्स को प्रेज किया, रॉबर्ट बर्न्स एंड थॉमस चैटरटन। हाँ जी थॉमस चैटरटन यंगेस्ट पोइट ने जो यंग एज जिन्हों की डैथ हो गई सी 17 और 18 एज दे विच। हाँ जी नैक्सट पोइम और टू ड्यूटी, डील्स विद मोरैलिटी, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय थॉमस ग्रेस और टू एडवर्सिटी। हाँ जी और टू ड्यूटी है जो विलियम वर्ड्सवर्थ की मोरैलिटी के नाल डील कर रही है, इन्फ्लुएंस हुई है थॉमस ग्रेस और टू एडवर्सिटी नाल। हाँ जी विलियम वर्ड्सवर्थ दियां लूसी पोइम्स एंड द लिरिक प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने। जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलड्स है काफ़ी लेंथी है, इसमें थोड़ी डीप दे विच नैक्सट पार्ट दे विच इन्हां नूं आपां करांगे। हाँ जी इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो दैन प्लीज़ कमेंट in the comment box, share with your friends, subscribe my channel preparation with RJ। हाँ जी फ्रेंड्स सेम नेम के उपर preparation with RJ के नेम से टैलीग्राम के उपर एक डिस्कशन ग्रुप बनाया गया जिस दे विच डेली बेसिस के उपर एक टॉपिक दिता जाता है तो उसकी नैक्सट डे क्विज फॉर्म के विच उसकी डिस्कशन की जाती है। हाँ जी तुसी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच देख सकते हो तो साडा ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।